conversion numericals. We will just brush up and recap the formulas which we have learned in previous classes. So suppose we have got domestic income, that is your gross domestic product at market price, and we have to move till national income, that is net national product at factor cost. So what conversions we have to do, let us see. When we have to convert the gross value into net value, क्या करेंगे हम depreciation less करेंगे. Okay, when we have to convert domestic product to national product, what we will do, we will add net factor income from abroad. Okay, then when we have to convert market price concept into factor cost, because market price is not taken in national income, we take production of goods and services valued at factor cost. I told you reasons also in previous classes why we take the value of goods and services at factor cost and why not at market price. Because market price is influenced by the demand and supply forces, and hence price fluctuates from time to time. So actual production in the year can be valued correctly through factor cost, that is factor payments made to factor of production, so that is your labor, capital or entrepreneur, etc. Now see, when we have to convert market price into factor cost, what we will subtract? We will subtract net indirect taxes. So there is one item which is added, one and two items which are subtracted. Minus depreciation to make your gross value to net value, plus net factor income from abroad to convert domestic product into national product, minus net indirect taxes to convert market price into factor cost. Now we got three things, that is, first is your depreciation, second is your NFIA, and the third is your net indirect taxes. So dear students, if depreciation as the name is given in the question, it's well and good, it's your very easy question, but sometime in spite of depreciation it is written consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital. So don't get confused, this is also equal to your depreciation. It's other name for your depreciation. Okay, so either this will be given कि depreciation is this amount, और consumption of fixed capital is given, मतलब कि consumption of fixed capital कितना आपने consume किया. So this is also your depreciation. Now sometimes in question, if the question level is easy, you will get entire net factor income from abroad, but sometimes it is not given and you have to find it. So how you will find? You will find, I told and we have discussed this concept earlier also, I am just revising the concepts ताकि फिर हम न्यूमेरिकल्स करें और आप कंफ्यूज नहीं हो. फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड, या तो आर लिख लो या एफ लिख लो. रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या हम इसको बेटर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. रिसीव्ड वर्ड हो ना हो, फ्रॉम ज़रूर होगा, ठीक है. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो रेसिडेंट्स दूसरी कंट्री में अर्न करेंगे और इंडिया वापस लेके आएंगे, वो होगी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारे इंडिया में आएगी. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी ये इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जाएगी. इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब इसकी वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी, दोनों ही हो सकती है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि हाँ क्वेश्चन गलत है. इट कैन कम इन प्लस ऑल्सो, इट कैन कम इन माइनस ऑल्सो. नेक्स्ट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80% it is given in the question, but sometime it is not given. So how you will calculate and find out net indirect taxes? So that is your indirect taxes minus subsidies. ये मैं आज थर्ड टाइम ये क्लास में बता रही हूँ, ठीक है. डोंट गेट कन्फ्यूज. क्या होता है आई ऑलरेडी टोल्ड. सब्सिडीज़ क्या होती है आई ऑलरेडी टोल्ड.
दोनों का नेचर क्या होता है ऑलरेडी टोल्ड, फिर भी बता देती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन एक पे पड़ता है और ऑब्लिगेशन पेमेंट की दूसरे पे पड़ती है। जैसे कि बर्डन पड़ा आपके किसके ऊपर, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन पड़ा किसके ऊपर, सेलर के ऊपर, लेकिन उसने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया। एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कस्टमर के ऊपर, जैसे वैट है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, जीएसटी है। तो आप देखते हो कि बिल में वो जीएसटी वैट आपके ऐड होके आता है, करेक्ट। तो वो बर्डन तो था सेलर के ऊपर, लेकिन पेमेंट एक्चुअली किसे करना पड़ा, आपके ऊपर। अगर बर्डन और ऑब्लिगेशन एक ही बंदे पे पड़े, दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, मेरी इनकम पे पड़ेगा, मुझे को पे करना पड़ेगा, मैं उसको पास ऑन नहीं कर सकती हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर टैक्स मुझ पे पड़ा है और मैं उसको पास ऑन कर सकती हूँ, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। टैक्स इटसेल्फ इज यूनिलेटरल पेमेंट, ये ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, यूनिलेटरल पेमेंट होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है। सब्सिडीज़ भी वन साइडेड पेमेंट होती है, यानी कि जो हमारे एक्सचेंज में गिव और टेक का सिस्टम होता है ना, एक मिस्टर ए ने दिया और मिस्टर बी ने लिया और मिस्टर बी ने बदले में कुछ दिया, जैसे कि ए ने गुड्स दिए और बी ने बदले में प्राइस दिया, तो ये एक प्रॉपर नॉर्मल एक्सचेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही वन साइडेड हैं। आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेम अमाउंट का बेनिफिट आपको नहीं देती है, सोसाइटी को देती है। आप सब्सिडीज़, आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देती है, लेकिन बदले में आप रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हो, तो ये वन साइडेड है। ये सिर्फ गिव हो रहा है और ये सिर्फ इधर से गिव हो रहा है। ये आप दे रहे हो, कंज्यूमर्स दे रहे हैं, हाउस होल्ड्स दे रहे हैं, और ये गवर्नमेंट दे रही है। बदले में ना गवर्नमेंट कुछ ले रही है, ना बदले में आपको गवर्नमेंट कुछ दे रही है। ये अलग चीज़, ये अलग चीज़। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि समटाइम क्वेश्चंस कम, what do you mean by subsidies? Subsidies are what? Subsidies are financial help given by the government and it is transfer payment also. Okay, the indirect taxes are what? ये तो हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. It is also transfer payment and it is a charge made by the government on households or other sectors. Okay, that is the thing. तो इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स वाई आई टोल्ड दिस. निट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, ठीक है, ये हो गया. तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई. नाउ वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, इफ सपोज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price is given rupees 500, okay, and depreciation या मैं बोलूँ consumption of fixed capital is given rupees 50, and the question is saying find out your net domestic product at market price. Simple question I am taking just for practice. Okay, तो हमें क्या पता है, हमको क्या करना है, जस्ट सी क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी हमको दिया है, और व्हाट हैव बीन आस्क्ड, दिस हैज़ बीन आस्क्ड. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो नाउ सी व्हाट वी हैव टू चेंज, ग्रॉस को चेंज करना है, ठीक है. ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना है, सेम है. मार्केट प्राइस को चेंज नहीं करना है, सेम है. तो ग्रॉस को जब नेट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, यू विल सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज गिवन हियर, नो, दिस इज द अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन, करेक्ट. तो क्या हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, कहाँ से शुरू करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस. अब हमको डीपी सेम, एमपी सेम, जी को एन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन. ये मेरा फॉर्मूला बन गया. फॉर्मूले के मार्क्स हैं आपके हाफ मार्क्स, तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. सेकेंड बेनिफिट ऑफ फॉर्मूला इज़ कि इसके नीचे नीचे आप वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो क्वेश्चन में आप कभी कुछ मिस नहीं करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, प्लस माइनस का ही क्वेश्चन होता है.
बट आइटम्स कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी हड़बड़ में जल्दी में आता है, टाइम कम है, कुछ ना कुछ आइटम आप मिस कर देते हो। तो फॉर्मूला अगर प्रॉपरली लिखा है तो उसके नीचे नीचे आप वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको दिया है 500 माइनस डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन, तो -50। योर आंसर केम व्हाट? 450 is your answer of what? Of NDP MP. This is the thing. Next question is saying what? Just see, your gross domestic product at market price is given again. It is 15,000. How much? 15,000. Now they are saying indirect taxes are rupees 1,005 and your consumption of fixed capital is rupees 500. Okay, then they are saying कि NFIA is -200 and your subsidies is equal to 500. Now what they are asking, just see, they are asking about calculate your national income. They are saying to calculate what? National income. अब national income का content हमें पता होगा तभी ना हम निकालेंगे. What is national income? National income is also known as NNPFC. सबसे लास्ट वाला आइटम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट मतलब डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, नेशनल प्रोडक्ट है मतलब NFIA रहेगा, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है नेट नहीं रहेगा। तो तीनों चीज़ें हमें कन्वर्ट करनी है। तो व्हाट आर फॉर्मूला इज लाइक GDP और यहाँ पे हमारा है क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जी को बनाना है n, तो हम क्या करें? हम माइनस डेप्रिसिएशन कर दें, किस में से? इसमें से। ठीक है, उसके बाद डीपी को बनाना है NP, तो हम क्या करें? हम प्लस NFIA कर दें। ओके, किस में से? इसमें से। फिर मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करें? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दें, किस में से? GDP MP में से। तो वी गॉट फॉर्मूला नाउ, isn't it? Now we will put, so you will get this net national product at factor cost. See, जो वैल्यू दी रहती है उसी में हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा ये है। तो वैल्यू हमको बड़ी दी है ये, तो हमको जो भी एडजस्टमेंट करने हैं इसी में करने हैं इन ऑर्डर टू रीच टिल हेयर। तो जो भी हम प्लस माइनस कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं? इसमें ही कर रहे हैं, वट एवर इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो GDP MP इज हाउ मच? पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस नेट। ठीक है, नाउ फॉर्मूला, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। वैल्यू में क्या है? GDP MP 15,000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन, ओके, तो दिस इज योर फॉर्मूला। नाउ वी विल राइट द वैल्यूज। GDP MP इज 15,000 डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज गिवन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा, sometime it is given as consumption of fixed capital. Sometimes we also find that depreciation is written with the other name like replacement cost of fixed capital. तो जहाँ पे वर्ड आ जाए फिक्स कैपिटल और उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हों तो वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। जैसे बोला फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, फिक्स कैपिटल की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक और वर्ड आ सकता है कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन, ये भी क्या हो गया? कैपिटल कंजम्पशन।
कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, तो ये भी क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो जहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात कर दें या कैपिटल कंजम्पशन की बात कर दें या रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात हो जाए क्वेश्चन में, या करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात हो जाए, तो वो सारे टर्म्स किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। वैसे जनरली ये आता है, बट समटाइम इट हैपन्स कि आपको पूरा क्वेश्चन आता हो और हमको डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आए। तो अगर फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन लिखा है तो डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स कैपिटल का कॉस्ट दी हुई है तो डेप्रिसिएशन होगा, कैपिटल कंजम्पशन की बात की है तो डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। Now we will put values. Depreciation is given how much? Depreciation is given 500 rupees minus 500. NFIA. NFIA is given, but it is given minus 200. तो we will write simply minus 200. वैल्यू को फॉर्मूले में डाल देंगे, प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे अभी। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्वेश्चन में हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट यहाँ पे सुंदर सुंदर निकालते हैं साफ साफ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, वो हम पहले कर चुके हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 1000 रुपीज़ है, और सब्सिडीज़ कितनी है, 500 है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन दो नेट कितना हो गया, 500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ इसको भी हम माइनस कर देंगे। फाइन, नाउ यू सॉल्व दिस। 15,000 माइनस 500 प्लस माइनस, यानी कि अब ब्रैकेट अगर मैं खोल दूँ तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तीनों ही माइनस होंगे इसमें से। तो आपका आंसर है क्या आएगा, 15,000 माइनस 1200। ठीक है, तो so answer will be what? Answer will be your 13,800. Let's see, 15,000 minus 500, 500, 1,000 and 200. So 15,000 minus 1,200. That will be your answer. Will be 13,800 of what? Of NNPFC. That is your national income. So these were the numericals of your conversion.